Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. So today we are going to start our fifth lecture of English grammar series, and the topic is about verb. So today we are going to discuss about what is verb and its two most important types and their differences. First one is action verb and the other one is linking verb. So let's start today's lecture. First of all, we are going to discuss about what is verb. Verb is basically the most important part of the sentence. Every sentence contains at least one verb. It is a word that are used to describe three things. एक्शन को डिस्क्राइब करती है, अकरेंस को डिस्क्राइब करती है और स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करती है, एग्जिस्टेंस को या कंडीशन को. वर्ब चेंज करती है अपनी फॉर्म को टू इंडिकेट डिफरेंट थिंग्स, लाइक टेंसेस को इंडिकेट करने के लिए दैट व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड, लाइक पास्ट टेंस में परफॉर्म हुआ एक्शन प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होगा. पर्सन्स को इंडिकेट करती है दैट हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, फर्स्ट पर्सन ने एक्शन परफॉर्म किया, सेकेंड पर्सन ने किया है या फिर थर्ड पर्सन ने किया. एंड थर्ड वन इज नंबर्स को इंडिकेट करती है, like either it is singular or plural. So let's move to some definitions related to verb. Let's discuss one by one. First जो है वो action है. Verb जो है action को describe करती है. वो action physical भी हो सकता है और mental तौर पे भी वो activity perform हो सकती है, like she sings beautifully. यहाँ पे जो sings का word है वो as a verb act कर रहा है और physical activity को show कर रहा है. Second example में I thought about my future, think का word as a verb act कर रहा है और mental activity को show कर रहा है. Second point occurrence है. Occurrence basically describe something that happens or taking place. Here we have an example. The accident occurred near the bridge. अब यहाँ पे जो occurred का word है वो as a verb act कर रहा है और accident के happening को show कर रहा है. It rained all night. यहाँ पे जो rain का word है वो as a verb act कर रहा है. Next point है state of being को जो है वो verb describe करती है. Basically it describes a condition or existence rather than an active process. He is happy. वो खुश है. अब इसका word as a verb use हो रहा है और condition को state कर रहा है उसकी. The team seems confident. Seems का word as a verb act कर रहा है और teams की state of being को describe कर रहा है. So I hope it's clear to you. Now let's discuss some types of verbs. Verbs are broadly categorized into various categories on the basis of the function they perform within a sentence. First जो type है वो main verbs हैं जिन्हें lexical verbs भी कहा जाता है. इनको further दो types में divide किया जाता है. First one is action verb and the other one is linking verb. So first of all we discuss about action verbs. Action verbs को dynamic verbs भी कहा जाता है. Action verbs basically express करते हैं किसी भी activity को या process को या फिर occurrence को. Sentence के subject क्या action perform कर रहा है या क्या action perform कर रहा था, वो action physical भी हो सकता है. ये action verbs जो use होती हैं वो show करती हैं कि जो action है वो physical भी हो सकता है और mental भी हो सकता है, mentally तौर पे भी activity perform हो सकती है. So the main function of the action verb is to perform an action. कुछ एक्शन वर्ब्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल एक्शन कौन से हैं और मेंटल जो एक्शंस हैं वो कौन से हैं और कौन सी वर्ब्स यूज़ होती हैं फिजिकल और मेंटल एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फिजिकल एक्शन में इन्वॉल्व होती हैं बॉडी मूवमेंट्स या फिर कोई एक्टिविटी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक जो वर्ब्स यूज़ होती हैं फिजिकल एक्शन को शो करने के लिए वो रन, जंप, राइट, ईट, स्पीक, स्विम, इस तरह की वर्ब्स फिजिकल एक्शन को शो करने के लिए यूज़ होती हैं. हियर वी हैव एग्जांपल, द डॉग चेज द बॉल. अब यहाँ पे चेज का वर्ड जो है वो एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है और फिजिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है. शी रोट अ लेटर. यहाँ पे जो वर्ड रोट है ये फिजिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है और एज अ एक्शन वर्ब, एज एन एक्शन वर्ब यूज हो रहा है सेंटेंस में. मेंटल एक्शन में हमारी थॉट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट होती है या फिर इंटरनल स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है मेंटल एक्टिविटीज़ में, मेंटल एक्शंस में. सो जो वर्ब यूज़ होती हैं कॉमनली वो थिंक, बिलीव, कंसिडर, ड्रीम, अंडरस्टैंड, इस तरह की वर्ड जो है वर्ब्स जो हैं वो यूज़ होती हैं मेंटल एक्शंस को, मेंटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. ही बिलीव्स इन मिरेकल्स. सो इस एग्जाम्पल में बिलीव्स का वर्ड एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, मेंटली एक्शन को शो कर रहा है कि मेंटल एक्शन परफॉर्म हो रहा है. आई अंडरस्टूड द कंसेप्ट. अब अंडरस्टूड का जो वर्ड है ये एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है, एज एन एक्शन वर्ब एक्ट कर रहा है, मेंटली तौर पे जो है एक्शन परफॉर्म हो रहा है. हम हमेशा कंसेप्ट या किसी चीज़ को अंडरस्टूड अपने माइंड के थ्रू करते हैं. सो अंडरस्टूड का वर्ड मेंटल एक्शन को
शो कर रहा है इस सेंटेंस में. So let's move to some identification rule. Let's study some identification rules that through which we can easily identify action verbs within a sentence. So first action को action show हो रहा होगा सेंटेंस में, लाइक वो एक्शन फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है. एग्जांपल देखें, दी एथलीट रन क्विकली, तो इसमें जो वर्ब है वो शो कर रही है कि फिजिकल एक्शन हो रहा है, और जो क्विकली का वर्ड यूज हुआ है, एडवर्ब यूज हुई है. एडवर्ब हमेशा वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. अब जो क्विकली वर्ड है वो वर्ब को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, और उसको क्विकली की जगह हम वर्ड स्लोली भी यूज़ कर सकते थे, वो भी एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, वर्ब के मीनिंग को और ज़्यादा इन्हांस कर रही है. लाइक कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाता है, नाउन वर्ड आ जाता है जो कि रिसीव कर रहा होता है एक्शन को. लाइक हियर वी हैव अनदर एग्जांपल, शी एट द एप्पल. अब यहाँ पे जो शी एट का वर्ड है, ये जो है वो वर्ब यूज़ हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है एट, और जो नाउन एप्पल वर्ड यूज़ हो रहा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है जो रिसीव कर रहा है उस एक्शन को. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम वर्ब ये जो एक्शन वर्ब सेंटेंस में यूज़ हो रही होती हैं, इनकी जगह रिप्लेस करके इज़, आर, एम, वाज, वर, इस तरह के वर्ब्स यूज़ कर लें तो मीनिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं. लाइक द डॉग च्यूड द बोन. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्शन वर्ब है या नहीं, तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे इज़, आर, एम को, तो मीनिंग देखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, इलॉजिकल सेंस हो गई है सेंटेंस की. सो ये इंडिकेट करता है कि इस सेंटेंस में जो है एक्शन वर्ब यूज़ हुए हैं. इसके अलावा बहुत कम जो है वो एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज़ होता है आफ्टर द एक्शन वर्ब, लाइक ही अराइव्ड टायर्ड. सो नेक्स्ट वी हैव अ कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस में भी हमेशा एक्शन वर्ब्स यूज़ होते हैं. लाइक वी आर स्टडीइंग ग्रामर. ग्रामर जो है वो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है आफ्टर इमीडिएटली जो है वर्ब यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में, जो रिसीव कर रहा है एक्शन को, फिजिकल एक्शन को. So let's study some types of action verbs, transitive with intransitive. इनका डिटेल लेक्चर इन दोनों टाइप्स में पे मैं कम्प्लीटली जो है वो सेपरेट लेक्चर एक प्रिपेयर करूँगी. यहाँ पे कुछ हाईलाइट, कुछ बेसिक पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं. लाइक ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है एक्शन को रिसीव करने के लिए. लाइक शी किक्ड द बॉल. अब इसमें जो बॉल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो रिसीव कर रहा है एक्शन. किक्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई है. इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लाइक द बेबी क्राइड लाउडली. अब इस सेंटेंस में जो क्राइड का वर्ड है ये एज इनट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो रहा है, और इसके बाद एडवर्ब यूज़ हो रही है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, एडवर्ब यूज़ हो रही है जो उसके मीनिंग को डिस्क्राइब कर रही है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है. सो लेट्स मूव टू और नेक्स्ट टाइप है लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं. लिंकिंग वर्ब्स जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करती बल्कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड्स या फ्रेजेस के साथ कनेक्ट करती हैं, तो इन कनेक्टेड वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं. सो द मेन फंक्शन ऑफ द लिंकिंग वर्ब्स इज टू कनेक्ट द सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे आर लाइक एन इक्वल साइंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ड दैट फॉलोज. सो आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करें तो इज़, आर, एम, वाज या वर की जो वर्ब्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए अगर लिंकिंग वर्ब्स के साथ, तो मीनिंग स्टिल सेम रहता है, सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस. So let's discuss some common linking verbs. Is, are, am, ये जो verbs हैं ये common linking verbs हैं. And like here we have an example, he is a doctor. इसमें ये जो doctor है ये noun use हुआ है जो कि renames किसको कर रहा है, subject को कर रहा है, he को कर रहा है इस sentence में, और is as a linking verb use हुआ है. next sentence में they were happy. इस एग्जाम्पल में जो वर है वो लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, और जो हैप्पी है ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, डिस्क्राइब किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को कर रहा है, दे को. कुछ लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो सेंसेस के साथ रिलेट करती हैं, लाइक साउंड, लुक, स्मेल, टेस्ट, फील. लाइक हियर वी हैव एग्जांपल, द म्यूजिक साउंड्स ब्यूटीफुल. अब इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब किसी कर रहा है म्यूजिक को, और साउंड जो है लिंकिंग वर्ब एज एन एक्ट कर रही है इस सेंटेंस में. द सूप टेस्ट साल्टी.
तो इस सेंटेंस में जो टेस्ट है वो जो लिंकिंग वर्ब एक्ट कर रही है, और जो साल्टी है वो एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है और किसे इंडिकेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, सूप को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं जो स्टेट या कंडीशन के साथ रिलेट कर रही होती हैं लिंकिंग वर्ब से। जैसे कि कुछ लिंकिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं, अपीयर, बिकेम, ग्रो, रिमेन, इस तरह की वर्ब्स जो हैं वो लिंकिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं और रिलेट किसके साथ कर रही होती हैं, स्टेट और कंडीशन के साथ। लाइक शी बिकेम अ डॉक्टर, अब यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है लेकिन रीनेम किसे कर रहा है, सब्जेक्ट शी को कर रहा है, और मिड में हमने जो वर्ब यूज़ किया वो लिंकिंग वर्ब बिकेम यूज़ किया। द चिल्ड्रन ग्रीव टायर्ड, ग्रीव का वर्ड एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और एडजेक्टिव जो है वो चिल्ड्रन को डिस्क्राइब कर रहा है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स स्टडी सम आइडेंटिफिकेशन रूल्स। As we discuss about that is, war, am, were, इस तरह की जो वर्ब्स होंगी उनको अगर हम लिंकिंग वर्ब्स के साथ रिप्लेस कर दें तो मीनिंग पे इफेक्ट नहीं होगा। लाइक द फ्लावर स्मेल स्वीट, द फ्लावर इज स्वीट, मीनिंग इज द सेम इन बोथ अबव सेंटेंसेस। सो हम रिप्लेस इजीली इन्हें कर सकते हैं। ये इंडिकेट करता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम सेंटेंस को कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स यूज हुए हैं क्योंकि मीनिंग पे इफेक्ट नहीं हुआ सेंटेंस के। एडजेक्टिव इसके बाद जो है वो लिंकिंग वर्ब्स के बाद राइट किए जाते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट को, और इसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ड टाइप देख लेते हैं। वर्ड टाइप के हमारे पास अगर लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में यूज़ होगी तो उसके बाद शी इज़ अ डॉक्टर या तो नाउन यूज़ होगा या फिर एडजेक्टिव यूज़ होगा। नाउन हमेशा रीनेम करेगा उसको, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को, सॉरी, और जो एडजेक्टिव होगा वो डिस्क्राइब करेगा सब्जेक्ट को। अब इस सेंटेंस में जो डॉक्टर है वो रीनेम किसे कर रहा है, शी को कर रहा है। सो इसे हम प्रेडिकेट नोमिनेटिव कहेंगे जिसमें नाउन जो है वो रीनेम्स कर रहा होता है सब्जेक्ट को। एडवर्ब हमेशा हमने डिस्कस किया अबव के एक्शन वर्ब्स के इमीडिएटली आफ्टर राइट किया जाता है। तो अगर हम लिंकिंग वर्ब्स के साथ एडवर्ब राइट करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट बन जाएगा। लाइक ही फील्स बैडली एंड द करेक्ट सेंटेंस इज ही फील्स बैड। अब यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है, तो यहाँ पे सेंटेंस इनकरेक्ट आ गया है और ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है क्योंकि इसके साथ एडजेक्टिव यूज हुआ है। जो वर्ब थी वो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब थी। So let's discuss some verbs that play a dual role in as an action verb भी act करती हैं और as a linking verb भी act करती हैं। So study कर लेते हैं। like feel है, I felt the rough fabric, यहाँ पे action verb जो है, action जो perform हो रहा है, action verb felt है और perform हो रहा है physical touch। और second जो example linking verb में जो है I feel sick today, यहाँ पे जो feel का word है वो लिंकिंग वर्ब यूज हो रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है स्टेट को। ही लुक्ड क्विकली अराउंड द रूम, फिजिकल मूवमेंट हो रही है आई की। लुक्ड एज एन एक्शन वर्ब यूज हो रहा है। यू लुक एग्जॉस्टेड, इसमें जो लुक का वर्ड है एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हो रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है अपीयरेंस को। नेक्स्ट जो वर्ब है वो है ग्रो। वी ग्रीव टोमेटोज इन द गार्डन, यहाँ पे कल्टिवेटिंग एक फिजिकल एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो एक्शन वर्ब एक्ट कर रही है इस सेंटेंस में। द सिचुएशन ग्रीव कॉम्प्लिकेटेड, इस सेंटेंस में ग्रीव जो है वो लिंकिंग वर्ब एक्ट कर रही है और डिस्क्राइब कर रही है चेंज इन स्टेट को। सो लेट्स स्टडी सम डिफरेंसेस। कुछ की पॉइंट्स हैं लाइक एक्शन वर्ब में या तो फिजिकल या मेंटली कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा इन सेंटेंसेस में जिनमें एक्शन वर्ब्स यूज होती हैं। लिंकिंग वर्ब्स जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग, आइडेंटिटी या क्वालिटी को शो कर रही होंगी। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कनेक्ट करती हैं एक्शन वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो कनेक्शन शो करती हैं, कनेक्ट करती हैं वर्ड्स को। लाइक नाउन और एडजेक्टिव, इनको हम अगर एक्शन वर्ब्स को रिप्लेस करें इज, आर, वाज, वर के साथ तो सेंटेंस का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जबकि लिंकिंग वर्ब्स को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो सेंटेंस स्टिल मेक सेंस। यूजली जो एक्शन वर्ब्स हैं उन सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब्स के बाद एडवर्ब जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रिसीव करता है एक्शन को यूज़ किए जाते हैं, जबकि लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव या नाउन यूज़ किए जाते हैं, राइट किए जाते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट को
और नाउन रीनेम करते हैं सब्जेक्ट को. सो लेट्स स्टडी सम फर्दर डिटेल्स. कुछ की पॉइंट्स हैं लाइक एक्शन वर्ब से पहले जो वर्ड यूज़ होते हैं वो सब्जेक्ट यूज़ होता है. लिंकिंग वर्ब में भी जो है वो सब्जेक्ट यूज़ होता है, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. जबकि जो वर्ड आफ्टर द एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब आते हैं वो एक्शन वर्ब के बाद जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, या तो नाउन आएगा जो एक्शन रिसीव कर रहा होगा या एडवर्ब आएगा जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा. जबकि लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, पहले या तो जो है वो एडजेक्टिव यूज़ होगा, सेकंड वन नाउन यूज़ होगा. एडजेक्टिव यूज़ होगा तो वो डिस्क्राइब कर रहा होगा सब्जेक्ट को, और अगर नाउन यूज़ होगा तो वो डिस्क्राइब रीनेम कर रहा होगा सब्जेक्ट को. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप दिस lecture will be helpful for you. Please hit the bell icon and subscribe our channel MPhil Scholar Ali Hizaz Academy. Thank you for watching. Allah Hafiz.